Hello everyone, welcome to Gyanbodh Academy. I'm Madhulika. Today is your 6th January and I have an article from the magazine group Yojana magazine which is talking about your GEM. What is GEM? It is basically meaning your government e-marketplace. And what the article is all about, we will be dealing with that and we will be looking at why it is in news, for what reasons our government has put in his views forward. Plus we will also be looking at how the digital market is growing and how we are digitally contributing to public procurement. We will also be looking at the growths and the future measures that could be taken. We will also be dealing with the genesis of GEM, means how basically it was formulated and how its working is going on and further plans. And lastly, we will be dealing with all the ease and all the measures for doing business and what are the different various sections that provides for business growth and establishment. So I will not give any introduction today because here the introduction itself is given, that why it is in news or for what reason the whole topic is all about. So let me read out to you. In India, public procurement amounts to nearly 20 to 25% of GDP. This means that a significant amount of taxpayers' money is directed towards making purchase of public goods and services that constitute the lifeblood of government programs and services. Given this contains, the amount of efficient public procurement cannot be overstated. To inculcate the Honorable Prime Minister Narendra Modi vision of inclusive development, corruption free governance and ease of doing business, was government e-marketplace was conceptualized as a special purpose vehicle under section 8 of the Companies Act within the ambit of Department of Commerce. Since its inception of GEM has enabled more than 60,000 crore of public saving. The portal's vast achievement have been propelled its to ascend one of the most foremost public procurement platforms globally, surpassing even the most advanced most advanced counterparts such as South Korea's CONEPS and Singapore's ZABIS across diverse metric all achieved in an astonishingly short period. So what it is talking about is basically your GEM. GEM, what I read out here is GEM means your government ई मार्केट प्लेस. ठीक है, ये होता है आपका जेम का फुल फॉर्म. तो इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस ऑफ परचेजिंग योर गुड्स एंड सर्विसेज इज़ योर प्रोक्योरमेंट. तो फिर इसमें बोला जा रहा है लाइक कोई भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट हुआ, पब्लिक चीज़ जो हम लोग खरीदते हैं, पब्लिक गुड या सर्विस, उसकी और उससे रिलेटेड सारा चीज़, चाहे आपका नेगोशिएशन हुआ, सोर्सिंग हुआ, टर्म्स एंड कंडीशन हुआ, नंबर ऑफ़ आइटम्स परचेज हुआ, वो सब आता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में. तो उसमें एक डेटा में देखा गया कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट वो है आपका नियरली 20 to 25% ऑफ द DGP, मतलब GDP में हाई परसेंटेज पे उसका प्लेस है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो अमाउंट है, जो टैक्स पेयर्स मनी पे करते हैं, इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स परचेजिंग ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज. हम लोग जितना भी टैक्स वो करते हैं, देते हैं या फिर पेमेंट जाता है गवर्नमेंट को, उसमें से बहुत सारा अमाउंट कहाँ डायरेक्टेड है? ऑफ मेकिंग पेमेंट्स ऑफ परचेज ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ ब्लड ऑफ पब्लिक प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज. इसके अलावा इसमें बोला गया है कि जो हमारे PM हैं, उनका विजन है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब सबको साथ में लेके डेवलपमेंट, करप्शन फ्री गवर्नेंस, ease of doing business. Government e-marketplace were conceptualized as a special purpose vehicle under section 8 of the Companies Act.
तो इसमें बोला जा रहा है कि इनका जो ये सब विजन है कि हम लोग एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाएं, गवर्नमेंट करप्शन फ्री हो, बिजनेस में कोई रोक रुकावट नहीं होता, इजीली कर सके बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस का। उसके अलावा जो गवर्नमेंट का मार्केट प्लेस है वो सब क्या होगा, एक स्पेशल कंसेप्शलाइज प्रोसेस में हो। और ये कहाँ पे मेंशन किया गया आपका, उनका ये विजन का मेंशन है आपका पब्लिक व्हीकल, स्पेशल व्हीकल, पर्पस व्हीकल अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। नो व्हाट इज कंपनीज एक्ट, तो बेसिकली क्या है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया बिल या एक्ट है, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक्ट है जो प्रमोट करता है हमारे देश में डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या बोल सकते ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है कि बिज़नेस को वो लोग इतना ओपन बना देंगे, इतना फ्री बना देंगे। जैसे पहले क्या होता था, लाइसेंसिंग सिस्टम की लाइसेंस नहीं है तो आप फर्म नहीं स्टार्ट कर सकते, या फिर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे, वो सब हटा के एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है कि मतलब जो चाहे वो बिज़नेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ये आता है आपका कंपनीज एक्ट के अंदर। और इससे क्या होगा, कंपनीज वेल एस्टैब्लिश भी होगी, स्टार्ट भी होगी और ऑपरेट भी करेगी बिना गवर्नमेंट रोक रुकावट के। तो ये हो गया आपका कंपनीज एक्ट में इसके बारे में मेंशन किया गया। And next it is talking about कि since its inception, what is the meaning of inception? इंसेप्शन आपका क्या है, मतलब कि सिंस इट्स हम लोग बोल सकते हैं सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट, ये आपका कंपनीज एक्ट या आपका स्पेशल व्हीकल पर्पस व्हीकल जो सेक्शन 8 में है कंपनीज एक्ट के अंदर, जब से वो सब एस्टैब्लिश हुआ है, जेम हैज़ अनेबल्ड 60,000 crore ऑफ पब्लिक सेविंग। ठीक है, इस जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की वजह से इतना परसेंटेज ऑफ हाई, मतलब हाई रेट में गवर्नमेंट सेविंग हुआ है, पब्लिक सेविंग हुआ है। द पोर्टल वाज अचीवमेंट हैज़ प्रोपेल्ड इट टू असेंड एज वन ऑफ द फॉर मोस्ट पब्लिक प्रोक्यूरमेंट प्लेटफॉर्म ग्लोबली, सबापिंग इवन मोस्ट एडवांस काउंटर पार्ट्स। तो क्या है ये जो हम लोग का है, मतलब हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है, जेम हुआ गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है, वो किसको सरपास कर गया, सरपास मतलब क्या होगा, किसको पीछे छोड़ दिया है, वो हमारे साउथ कोरिया के कोनेप्स या सिंगापुर के जैबिस, ये सबको पीछे छोड़ दिया है। अब कोनेप्स क्या है साउथ कोरिया का, ये बेसिकली क्या है, एक वन स्टॉप, आप कह सकते हैं वन स्टॉप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, किसका, साउथ कोरिया का, वेर जितना भी प्रोसीजर है रिगार्डिंग परचेज ऑफ योर पब्लिक गवर्नमेंट थिंग, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज, वो पेमेंट से लेकर डिसीजन मेकिंग से लेकर पेमेंट तक पूरा एक स्टेप में, या बोल सकते तुरंत में आपका हो जाता है, कोई इधर उधर भागा दौड़ी नहीं है, तुरंत आपका डिसीजन मेकिंग से लेकर पेमेंट तक का सफ़र ईजिली हो जाता है, वो आता है आपका कॉनेप्स में। उसके अलावा जो हम लोग बोल रहे साउथ कोरिया का जेनेप्स, इसमें क्या है, जेनेप्स में क्या है, जैबिस में क्या है आपका कि ये भी एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, और ये एक कह सकते हैं एक तरह से ई प्रोक्योरमेंट है। ठीक है, ई प्रोक्योरमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट है, वेयर द पोर्टल्स ऑफ द portals of the government, or you can say any kind of government goods and services can be easily available to the people। तो सब एडवांस्ड वहाँ पे प्रोग्राम से जो वर्क करता है, इसको हमारा जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पीछे छोड़ दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट read out the first paragraph. Set up in August 2016, Government e-Marketplace is world-class, robust digital portal that facilitates end-to-end procurement of goods and services by various central and state government departments, organization, and allied public service undertaking. It provides a paperless, cashless, and contactless ecosystem for government buyers to direct purchase products and services from pan India sellers and services provider through a unified online infrastructure. GEM covers the entire gamut of procurement process, right from vendor registration and item selection by buyers to receipt of goods and facilitation of timely payment। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जेम का आपका ये कब बना था, ये आपका अगस्त 2016 को बना था। वर्ल्ड क्लास क्या है, डिजिटल पोर्टल है, मतलब ऑनलाइन वर्किंग करने वाला एक पोर्टल है। और इससे क्या होता है, एंड टू एंड, मतलब अगर बहुत अच्छे से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोक्यूरमेंट होता है। प्रोक्यूरमेंट मतलब हम लोग जो गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज बाय करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोक्यूरमेंट।
ठीक है, वो इतना एंड टू एंड प्रोक्यूरमेंट होता है बाय होम, बाय सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, या आपका PSUs बोल सकते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। तो इसका डेफिनेशन आप इसको लर्न कर सकते हैं, क्या है इसका पर्पस है। इसका पर्पस क्या है? इट प्रोवाइड्स अ पेपरलेस, कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इकोसिस्टम फॉर गवर्नमेंट बायर्स to directly purchase products and services from pan India sellers and service providers। pan India sellers क्या हो गया? जो थ्रू आउट इंडिया में सेलर्स हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स है, चाहे वो स्पेशली वो प्राइवेट फर्म हो, उनमें से वो लोग खरीदेंगे, वहाँ से वो लोग परचेज करेंगे एंड देन दे विल बी सेलिंग एट पब्लिक PSUs या बोल सकते हैं, या आप जो भी है आपका पब्लिक गुड्स सर्विसेज हुआ। सो इट इज़ अ यूनिफाइड ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा बोला जा रहा है कि ये जेम है, इट कवर्स an entire gamut of the process from vendor registration to item selection to buyers to receipt of goods and facilitation of timely payments। तो इसमें क्या होगा? गवर्नमेंट ई मार्केट के अंदर आपका सब कुछ टाइमली या ऑर्डर से होगा, चाहे वो आपका आइटम का सिलेक्शन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, या फिर टाइमली पेमेंट्स होना, सब इसके अंदर अच्छे से आ जाएगा। बाय एक्सटेंडिंग द राइट कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी, द portal has been about a paradigm shift in India's public procurement landscape. Next, need for a digital solution for public procurement. Government procurement used to be opaque, time consuming, cumbersome, and prone to corruption and cartelization. Buyers were forced to purchase substandard goods at high and non negotiable rates for unscrupulous suppliers. Potential sellers had to run from pillars to post, completely at the mercy of facilitating agencies to get em- empaneled and then get timely payments। तो इसमें पहले का कंडीशन बताया जा रहा है, जब जेम का नहीं निर्माण हुआ था, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नहीं आया था, उस समय क्या होता था कि हर चीज़ क्या था? करप्शन था, टाइम कंज्यूमिंग था, ओपेक था, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं था, सब कुछ इधर से उधर होता था, करप्शन होता था। उसमें क्या होता था? बायर्स वे फोर्स टू परचेज गुड्स एट हाई रेट, और उसमें नॉन नेगोशिएशन था, मतलब आप नेगोशिएट नहीं कर सकते थे। और फिर क्या था कि जो भी सेलर्स है, पोटेंशियल सेलर्स है, दे हैड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। ठीक है, और फिर वो जो भी आपका एजेंसीज है, वो क्या है, हर चीज़ टाइमली पेमेंट वगैरह नहीं मिलना, इस तरह से डिसऑर्डर देखा जाता था। लेकिन जेम के आने के बाद ये सब जाने लगा। नेक्स्ट, देयर वाज अ प्रेसिंग नीड फॉर अ कंप्लीट metamorphosis from the Directorate General of Supplies and Disposal to a digital e-commerce portal that could facilitate the ease of doing business without any barriers to entry and establish a competitive marketplace to enable the procurement of quality goods and services at reasonable rate। The new system has envisioned to replace age-old manual process that were riddled with inefficiency and corruption। तो क्या हुआ? अगर जब जेम आया तो हर चीज़ आपका क्या हो गया? डिजिटल मोड से होने लगा। तो इससे क्या होगा? वो करप्शन आपका कम हो जाएगा, इससे आपका इनएफिशिएंसी कम हो जाएगा। फिर जो मैनुअल यानी पेपर वर्किंग वगैरह काम होता है, इतना सारा पेपर लफड़ा झफड़ा, वो सब एंड हो गया ऐसे। उसके अलावा बोला जा रहा है कि कम्पिटिटिव मार्केट प्लेस जो है, उसका जो एंट्री है या फिर फर्म्स को एंटर करना है, एग्जिट करना है, तो वो सब बहुत लिबरल बना दिया गया है। सो ये क्या है? ये डिजिटली है, ये मार्केट प्लेस है, ये ई कॉमर्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोल सकते हैं, इसकी वजह से ये पॉसिबल है। इसके अलावा इसमें बोला जा रहा है कि it is it is without any barrier to entry to establish a competitive market to enable procurement of goods and services at a reasonable rate। रेट भी यहाँ पर रिजनेबल है, इतना सारा इसका एडवांटेज बताया गया। नेक्स्ट इट इज टॉकिंग ऑफ जेनेसिस ऑफ जेम, मतलब कैसे ऑल प्लेसेस हैज बीन फॉर्म्ड। Government e-marketplace was set up with a vision to transform the public procurement ecosystem of a country with a technological, advanced, robust, and digital-only platform। Through digitalization of process, GEM has led to a higher process efficiency, information sharing, improved transparency, and reduced process cycle time, and a higher level of trust among bidders. This, in turn, has resulted in a greater competition and higher saving। These innovations in GEM have brought down
waiting time and prices to buyers significant and ensured timeless payment to the sellers. Its inclusive approach has created an open and diverse public procurement marketplace that provides a level paying field to startup MSMEs, women entrepreneurs, artisans, and craftsmen, allowing them to participate in government tenders without any barrier, thus ensuring the ease of doing business with the गवर्नमेंट. सो देखिए इसमें इसका एडवांटेज बताया गया कि क्या फ़ायदा है ऐसा कोई प्रोग्राम लाने का या फिर ऐसा न्यू तरीके का लाने का. तो उसमें इसमें बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो आपका बाइंग गुड्स और सर्विसेज पब्लिक गुड्स और सर्विसेज आप अ, उसमें आप देखते थे कि कैसे सारा डिसएडवांटेज था. लेकिन जब से ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आया, वो किस विजन से आया कि ताकि जितना भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो रहा है वो टेक्नोलॉजिकली हो जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे. उसके अलावा एडवांस्ड हो जाए, रोबस्ट हो जाए, डिजिटल ओनली प्लेटफॉर्म ताकि डिजिटली हर जगह अगर अवेलेबल होगा तो ज़ाहिर सी बात है एफिशिएंट भी रहेगा और प्लस करप्शन भी नहीं होगा. इसके अलावा जो प्रोसेस को डिजिटलाइजेशन हुआ उसमें क्या हुआ, इससे हाई एफिशिएंसी हुआ, इन्फॉर्मेशन शेयर हो पा रहा है, मतलब लोग अवेयर हैं. उसके बाद ट्रांसपेरेंसी भी दिखाया जा रहा है, टाइम भी कम ले रहा है, और फिर क्या हुआ, हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट इज़ देयर बिकॉज सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ आपके सामने है. उसके अलावा इट हैज़ रिजल्टेड इन ग्रेटर कंपटीशन एंड हायर सेविंग्स. अभी हम लोग बात की कितना सेविंग्स हम लोग देखें, 60,000 crores का पब्लिक सेविंग आज के डेट पे हुआ है इस जैम के वजह से. इसके अलावा जो इसका जब निर्माण हुआ या फिर व्हेन इट केम इनटू फोर्स, उस समय देखा गया कि द वेटिंग टाइम एंड द प्राइजेस फॉर द बायर्स, इट हैज़ बीन इंश्योर्ड टाइमली पेमेंट्स टू दी सेलर्स. तो इतना इसका एडवांटेज है, अगर कोई सेल करता है तो उसको अपना पेमेंट क्या टाइम से मिलेगा, इसका भी ध्यान रखा जाएगा. नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारे जो स्टार्टअप हुए, छोटे मोटे एमएसएमईज हुए, फिर आपकी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हुए, उन सब भी इनको इनसे बेनिफिट होंगे, चाहे छोटे छोटे लोग आप में आर्टिशन हुए. तो बिकॉज मार्केट में फ्री एंट्री है, कोई बैरियर नहीं कि ये कीजिए वो कीजिए ऐसे कीजिए, आपको कोई कंडीशन नहीं है, मार्केट में एंटर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ योर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी. इसमें बोल रहा है गिवन दी sheer scale and complexities involved in regarding and the process of the entire spectrum of central and state government department and PSUs, the switch over to GEM has likely been one of the largest digital transformation exercises undertaken by the government globally. Despite challenges, the portal has witnessed significant year on year growth in terms of the number of sellers registered, total procurement made, and cumulative order value transacted through the platform. तो इसमें कुछ ग्रोथ प्रोग्रेस देखा गया, आप लोग मार्क कर सकते हैं कि उसमें क्या देखा गया कि 1 year to year ग्रोथ देखा गया है. उसके बाद सेलर्स लोग आगे बढ़े हैं, ज़्यादा रजिस्टर किए हैं, फिर प्रोक्योरमेंट पोर्टल मतलब बाइंग रेट्स बढ़ा है, और फिर ये प्लेटफॉर्म बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ सबको दिया, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हुए, स्टेट गवर्नमेंट्स हुए, सेंट्रल ही कुछ हुआ या फिर एक नॉर्मल फर्म हुआ. इसके अलावा ये कुछ डेटा है, इसके थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हैं. ये कुछ इतना तो डेटा आपको रिमेंबर नहीं करना है, बट कोड करने के लिए यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. विल कम हियर अबाउट द जेम प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. कैसे वो बिजनेस प्रमोट करता है या फिर आप कैसे आप बिजनेस कर सकते हैं इसके अंदर. तो एज अ facilitator, GEM portal connects buyers, sellers, and service providers on the unified platform to facilitate procurement of public goods and services. तो क्या करता है, सभी लोगों को कनेक्ट कर देता है, कैसे, डिजिटली. तो इससे क्या होता है, बाइंग सेलिंग वो सब ईजी हो जाता है पब्लिक गुड्स और सर्विसेज का. Transforming through the cost reduction and efficiency, GEM has revolutionized public procurement in India by reducing cost, enhancing efficiency, fostering transparency. The platform empowers buyers and sellers nationwide to engage in hassle-free digital transaction. तो क्या है, क्योंकि डिजिटल है हर चीज़, तो क्या है, हेज़ल फ्री है, मतलब कोई किच पिच नहीं होगा. उसके अलावा एक ट्रांसपेरेंसी रहेगा, बायर्स सेलर्स सब एम्पावर्ड रहेंगे, और ये क्या करेगा, कॉस्ट भी रिड्यूस करेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो इसका फ़ायदा है. Inclusive empowerment of sellers. GEM empowers sellers of diverse backgrounds, including women entrepreneurs, artisans, self-help groups, corporates, MSME starters,
startups offering a one-stop shop in contactless, cashless and paperless ecosystem with timely online payments। तो इसमें क्या बोला, ये हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लेकर चलता है, चाहे वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, फिर आर्टिशंस हुए, छोटे छोटे लोग एंटरप्रेन्योर्स हुए, तो उसको सबको मौका देता है स्टार्टअप खोलने का या फिर अपने मन से बिजनेस करने का। तो इट इज़ अ वन स्टॉप शॉप। इसमें कोई कॉन्टैक्ट का किसी का ज़रूरत नहीं है, कोई कैश वर्क नहीं है, पेपर वर्क नहीं है, सब ऑनलाइन तरीके से ट्रांसपेरेंट और ईजी वे में हो रहेगा। नेक्स्ट, seamless registration process. GEM registration process prioritize ease, convenience and minimal data entry. It is validated through online integration with the Aadhaar card database, serving as a primary user identification proof। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, बस एक आधार चाहिए। इसमें कुछ भी आपको कुछ एक्स्ट्रा डेटा वेटा एंटर नहीं करना है, ये इजीली आपको प्रोसेस में लाके आपको इम्प्लीमेंट हो जाता है बिना कोई ज़्यादा वर्क का। Next, it is talking about your dynamic goods and services platform. GEM continuously updates its platform by adding new categories of goods and services based on the feedback received from various stakeholders। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जैसे फीडबैक आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके हिसाब से ये प्लेटफॉर्म अपडेट होते रहता है और न्यू कैटेगरीज यानी नए नए तरीके के गुड्स और सर्विसेज मार्केट में इंक्लूड होते जाते हैं। नेक्स्ट, डाइवर्स बाइंग modes. GEM facilitates procurement through various modes including direct purchase, L1 procurement, bidding, reverse action, forward action, सिंगल पैक बिल्डिंग एंड पुश बटन प्रोक्योरमेंट। ये सब डिफरेंट वे है जिसकी वजह से आप तरीका से आप खरीद सकते हो उसको। नेक्स्ट इज योर कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट क्या बोला जाए, कीप इन लाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ स्पीड, एफिशिएंसी एंड मिनिमल मैनुअल interface। GEM auto generates a contract between buyers and sellers on the basis of specific technical parameters and detail chosen by the buyer, such as delivery period and delivery item। GEM also provides the functioning of updating the contact along with the vision control and audit trail। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है स्पीड को कंट्रोल करने में, एफिशिएंसी को देखने में, और मैनुअल इंटरफेरेंस है यानी जो पेपर वर्क वगैरह है वो सब आपको मैनेज करने के लिए। उसके अलावा आइटम का डिलीवरी टाइम पे होता है, बायर्स को बाइस चूज करने के लिए हेल्प करता है। तो दिस हैव मैनी अदर साइंटिफिक बेनिफिट। तो ये सब आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। क्या जेम है, क्यों इसको लाया गया, क्या इसका भी इसका जेनेसिस है या फिर कैसे वो बिगिन हुआ, कैसे वो मार्केट में अपना प्लेस किया, कैसे वो आपका साउथ कोरिया के कोनेप्स या सिंगापुर को जेबस को पीछे छोड़ दिया। तो ये सब आप जाके गो थ्रू कर सकते हो और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली रिगार्डिंग योर डिजिटल इकोनॉमी एंड ऑल। So that was all for today. Thank you and have a wonderful day ahead.